Okay, so in the last lecture we discussed what is an operating system, and we discussed basically how a computer system works, what are the hardware components, and what roles an operating system can play in managing those hardware systems, and how interrupts are helpful, direct memory access we discussed, and how we can provide protection and all these things. Today we are going to discuss basically the components of the operating system. What are the major components of an operating system? So basically these are the main thing, and each one of them can be considered as a major part of the operating system. Process management, पहला काम process management का है. What is a process? Basically a process is a program in execution. Okay, and operating system itself is a process, तो ये अपने आप को भी मैनेज करता है. दूसरा काम मेन मेमोरी मैनेजमेंट का है, because as I told you yesterday, the CPU can access data only from the main memory. Okay, so main memory is an important resource. RAM and ROM, these are the part of the main memory. ROM we cannot do much. So basically when we talk about main memory management, we are talking about RAM, right? We are talking about RAM, how the RAM is distributed between different processes, because we are talking about multi-programming systems, so more than one system in the maybe in the main memory. How the memory will be distributed between the operating system and the user processes, that is important. File, if you know, file is basically a collection of related data. Okay, and this is another aspect of the operating system which need to be managed. Then we need to manage the input-output systems, because without input-output devices, there cannot be any outside world interaction. Okay, so we need operating system intervention while managing these input-output devices. Secondary memory management, because the entire data may not be in the main memory, and since the RAM is volatile, we need some device where we can store our data permanently. So next job of the operating system is to provide a mechanism to manage this secondary storage. And when we talk about a distributed system, and when standalone system is not very much meaningful nowadays, so some networking facilities need to be provided by the operating system. Protection, we see that unauthorized access is a major challenge for the system administrator. So if a user cannot access the data and the programs of other user, that facility need to be provided by the operating system. Then command interpretation system, with the help of which the user can interact with the operating system. So all these are basically the components of the operating system. While designing the operating system, we need to take care of these things, and these are basically the components of an operating system. Okay, we will discuss them one by one. So first of all, process management, because this is the prime responsibility of the operating system to manage process. A process is nothing but a program in execution. जब तक मेरा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है, यहाँ पे जब तक मेरा प्रोग्राम है तब तक वो प्रोग्राम है. जब वो उसको उठा के मैं रैम में ले आया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको रैम में प्लेस में लिया, then this becomes a process, right? So a process needs certain resources. It will require CPU time, it will require memory, it may use files, input output devices,
and all these things are required to accomplish this task. So operating system is basically responsible for process creation and deletion. Okay, whenever there are certain system calls, right? With the help of it, we can ask the operating system to create processes. And there are certain system calls with the help of which we can delete the processes. We can suspend the process execution. We can resume the process execution. That will be done by the operating system. Then, actually, there are two types of processes we will discuss later on. One is cooperative processes, another independent processes. Cooperative and independent. So when I am talking about cooperative processes, then in that case, this process synchronization becomes more relevant, and this process communication will also be very important in case of cooperative processes. But in case of independent processes, these two things are not that much relevant. Next is basically main memory management. As I told you that this is the main memory, and we have suppose this OS area. This is user area. This can be further given to the various processes P1, P2, P3, P4. Processes comes and goes. ये process मान लें यहाँ से निकल गया, ये process यहाँ से निकल गया, तो ये area मेरा खाली हो गया. और कोई दूसरा process आएगा तो उसको कौन सा area allocate करना है. All these things are taken care by the operating system, and we have to see that this is a volatile storage and its content is lost in case of system failure. So हमें ये ध्यान करना पड़ेगा कौन सा area memory का अभी खाली है, कौन सा area अभी fill है, और अगर यूज हो रहा है तो कौन सा प्रोसेस उसको यूज कर रहा है, खाली है तो कितना उसका साइज है, और जो नया प्रोसेस आया है क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है कि नहीं पूरी कर सकता. All these things are taken care by the operating system. Then file basically, whether we store a program or we store data, that has to be stored in a file, right? So file is an important part of our computer system. This is collection of related information. There can be various types of files. There can be batch files, there can be executable files, there can be data files, word files, and various type of files. So operating system needs to provide some mechanism to handle file efficiently. We need some mechanism to create files. We need to mechanism to delete files. Directory, as you come to know that we have to manage these files hierarchically. Okay, and this is not possible if I have 10,000 files and I do not have any directory. It will be very difficult to locate a file and will be difficult to remember the names of the files. So directory and hierarchical structure is very important. So we need mechanism. Give me 1 minute, please. So basically hierarchical structure is very important. अगर मेरे पास 10,000 files हो और उनमें से मुझे कोई file locate करनी हो, that will be very difficult. But what I do, I manage my files in different directories and subdirectories, and with the help of that, I am able to locate my file easily. So the operating system provides me the mechanism to create directory, delete directory, and then I need primitives for manipulating files and directories. Open file, read file, write file. All these system calls are required. How basically where my file will be stored. My program and data files will be stored in the secondary storage. Secondary storage में उनको कौन-कौन से block मिलेंगे? मान लिया मेरी कोई 2048 bytes की file है.
right? And my block size is 512 bytes. I require 4 block of disk storage. तो ये कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे, ये सब जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है. I need not to remember, I need not to know where my file is stored. कौन कौन से वो 4 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे मेरा ये 2048 बाइट स्टोर्ड है. बट ऑपरेटिंग सिस्टम को इस सब की चिंता करने की जरूरत है. मैं तो सिर्फ फाइल का नाम बताऊंगा, उसको ये सब पता है कि कौन कौन से 4 ब्लॉक्स मैंने अपनी फाइल को एलोकेट किए हुए हैं, वहां से वो मुझे डाटा लाके दे देगा. इसके साथ साथ बैकअप और बैकअप मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहती है. So this is all about the file manipulation. We will discuss all these things one by one, then we will go into the details. Then IO system management. There are basically 2-3 things. One is buffering, another is caching, and as I told you, this is my CPU. This is my IO device. We have device controller here. So there is a communication like this. This is the hardware part. And in operating system, we have a device driver. The responsibility of the device driver is to take care of the particular characteristics of a device. And this device driver will be able to provide us the interface with the help of which the user can easily access the services or provided by this particular device. So we need driver for the specific hardware devices. अगर मेरा printer HP 1020 है तो उसके लिए ड्राइवर अलग होगा. अगर मेरा printer Epson का है, कोई मॉडल नंबर मुझे याद नहीं, Epson मान लिया 3040 है, तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर अलग होगा. क्योंकि every device has its own particular characteristics, its own basically electronics. So all these things have to be handled with the help of these device drivers. Then secondary storage management. Primary storage is volatile. I cannot store my files and data files and the program files in the RAM permanently. So I need to store them somewhere. And secondary storage is the only medium where I can store. क्योंकि अगर मैं ROM में store करूँगा तो ROM is read only. Okay. So I cannot basically, if I store in ROM, so this is read only. I cannot change my data and program. The only option left with me is secondary storage. Right. So every modern computer system has some sort of secondary storage. The most prominent is basically HDD, hard disk drive, and we will discuss this also in the detail. We discussed the architecture of the hard drive in the last lecture. So basically, the operating system is responsible for these main characteristics, main tasks. One is free space management, right? Basically, suppose I have a 1 terabyte hard drive, out of which 40 GB is free, but this 40 GB is scattered throughout. This is not at one place. So the operating system needs to maintain a list where the space is available, and whenever the user requires some storage, the operating system is responsible for allocating storage to that user for that particular file out of this free space. क्योंकि free space में से देगा ना, अगर पहले से filled space में से दे दिया तो overwrite हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं है. Second thing is when a process needs some data from the hard drive, there may be multiple simultaneous requests because multiple processes are there in multi-programming systems, and hard disk is generally one in a system. So multiple processes are requesting data from the hard drive. Now it is the responsibility of the operating system to provide data in an efficient manner. और वो disk scheduling algorithms हैं, उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे.
Then networking, I told you that in distributed systems we have geographically dispersed system which are geographically apart. So these are connected with the help of a communication network, but operating system plays a major role here also, because suppose this is one system, this is another system, they are connected with the help of a communication network, but ultimately the operating system is responsible for setting up a communication and actually providing the facility to the user to communicate with remote systems, right? So we need protocols also, we need primitives for send and receive messages, because distributed system में जो communication है वो message passing के through है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा। एडवांटेज हमने कल ही पढ़ी लिए थे, कंप्यूटेशनल स्पीड अप हमें मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी बढ़ती है और अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ये तीनों चीजें हमें एडवांटेजेस रहती हैं। तो वी नीड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी नीड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म for controlling access by programs. Acha, suppose the users may be of different types in a program, in a system. There can be various type of users. Suppose मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रिंटर है और उस प्रिंटर को मैं हर किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता, ओके, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड थिंग, सपोज ये यूजर 1 और यूजर 2 और यूजर 3 तीन यूजर हैं और उनका ये कोई डेटा है आपस में, यूजर 1 का, यूजर 2 का, यूजर 3 का, तो आई वांट दैट यूजर 1 अपना डेटा एक्सेस करे, यूजर 2 अपना डेटा एक्सेस करे, यूजर 3 अपना डेटा एक्सेस करे, एक दूसरे से इनको प्रोटेक्शन देना है। तो वो सब काम की जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की रहती है कि जो यूजर जिस रिसोर्स के लिए ऑथराइज हो उसको एक्सेस करे, एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में टांग ना अड़ाए। देन कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम, अभी आप लोगों ने GUI देखा ही है, सब ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड रहते हैं, बट एक कमांड इंटरप्रेटर भी होता है ना, जैसे लाइनक्स में या विंडोज में भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है ना, ये वाला, यहाँ पे जो आप कमांड टाइप करेंगे उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, राइट? सो इस कमांड को रीड करना, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंगली यूजर ने क्या डिमांड किया है उस कमांड को एग्जीक्यूट करना, वो सारी जिम्मेदारी इस कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम की होती है। तो ये इस सारे कमांड अवेलेबल रहते हैं हमारे पास, और उन कमांड्स को हम कमांड इंटरप्रेटर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये नहीं मिटेगा। शेल प्रोग्रामिंग भी होती है लाइनक्स में, जिसकी हेल्प से हम बैच फाइल बना के बहुत सारे कमांड्स को एक साथ एक बैच फाइल में स्टोर कर लेते हैं और उसको फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक 1 by 1 वो सारे कमांड मेरे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। दिस इज वेरी पावरफुल फीचर इन लाइनक्स एंड वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस फॉर, ओके। सो these were the components. Any questions till now? अभी तो कोई क्वेश्चंस है आप लोगों के? We discussed the components of the operating system. No questions? So I move forward. Then there are various services provided by the operating system, right? पहली सर्विस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, राइट? प्रोग्राम को हम हार्ड ड्राइव में मेरा प्रोग्राम स्टोर है, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है तो पहले मुझे उसको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। देयर इज अ सब पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज लोडर, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि पहले तो ये ढूंढना कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेमोरी में कौन सा पार्ट फ्री है और ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को कौन सा एरिया मेमोरी का देना चाह रहा है। उसके बाद
हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को ट्रांसफर करके मेन मेमोरी में डालना और फिर उसके बाद कंट्रोल उसको ट्रांसफर करना, ये सारा काम लोडर करता है। देन आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, इनपुट आउटपुट। सपोज प्रोग्राम को कुछ इनपुट आउटपुट करना है तो उसके लिए भी सीधे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज प्रोग्राम यूज कर सकता है। देन फाइल सिस्टम्स, आई वांट टू create a file, I want to delete a file, I want to read a file, I want to write a file. For that purpose, I need to take help of the operating system, and there are system calls with the help of which a program can open files, read files, write files, delete files. Then we need to perform communication. That depends whether we are talking about a tightly coupled system or loosely coupled system. या तो अगर एक ही सिस्टम है तो शेयर्ड मेमोरी में काम चलेगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो मैसेज पासिंग होगा। बट मैसेज पासिंग अगर है तो सेंड एंड रिसीव मैसेज की जो फैसिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज एरर डिटेक्शन। सपोज आपके प्रोग्राम में कहीं इलीगल ऑपकोड या डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्शन जनरेट करना है, या आपकी मेमोरी में कहीं एरर आ रही है, मेमोरी को करप्ट हो गई है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में अगर कोई एरर है तो दैट एरर हैज टू बी टेकन केयर बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कह के नहीं छोड़ सकता कि भाई एरर आ गई अब मैं क्या करूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना और ऑपरेशन कंटिन्यू रखना, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिसोर्स एलोकेशन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज रिसोर्स एलोकेटर। देर से आने वालों ना बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं, स्पेशली इन दिस। रिसोर्स एलोकेटर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। And efficient resource allocation is one of the main tasks of the operating system. Secondly, accounting may be required in some cases. अगर आपका अपना पर्सनल सिस्टम है तो आपको अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं या कहीं आप ऐसी जगह यूज कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको पे पर यूज पेमेंट करना है, या आपका लिमिटेड टाइम है कि आप दिन में प्रिंटर मान लिया 50 पेजेस आपको अलाउड है पर यूजर प्रिंट, तो वो सारी अकाउंटिंग की जो जिम्मेदारी है रखने की वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तीसरा चीज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना भी इसकी जिम्मेदारी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। दीज आर द एडिशनल सर्विसेज व्हिच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अस। So I told you that system calls are there, and system calls are very important. These are the basically the interface between the program and operating system. मैंने आपको बताया कि ये जो CPU है, यहाँ पे यूजर है, बीच में यहाँ पे आपके OS आके बैठ गया, ठीक है। तो ये CPU OS से बात करेगा, OS यूजर से बात करेगा, वाइस वर्सा। इसी तरह से जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरा OS है, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है E1 सपोज, और यहाँ पे मेरी सिस्टम कॉल्स हैं। तो इसको जब भी बात करनी होगी सिस्टम कॉल्स के थ्रू बात करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो भी सर्विसेज प्रोसेस को मेरे चाहिए वो दीज विल बी अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम कॉल्स। तो सिस्टम कॉल्स में आपको क्या करना होगा, दीज आर जनरली अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। जनरली असेंबली लैंग्वेज में लिखी रहती है, बट C++ में भी लिखी जाती है कुछ सिस्टम कॉल्स। तो इनमें पैरामीटर पासिंग करनी पड़ेगी। सिस्टम कॉल मान लिया मुझे फाइल ओपन करनी है, ओपन फाइल करने के लिए एक ओपन सिस्टम कॉल है, राइट। तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस मोड में फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, रीड मोड में करना चाह रहा हूँ कि राइट मोड में करना चाह रहा हूँ, फाइल का नाम क्या है, ठीक है। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं साथ में, वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ।
तो ये सिस्टम कॉल मेरे प्रोग्राम के अंदर जब एग्जीक्यूट होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये कॉल हुई मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरे प्रोसेस के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस सिस्टम कॉल and will try to open this file in the read mode, but if this file is not available, then the operating system will return some error, right? सर ये बैकग्राउंड में होता है क्योंकि हम तो GUI पे काम कर रहे हैं ना। किस पे कह रहे हो? सर ये बैकग्राउंड में होती है सिस्टम कॉल्स क्योंकि हम तो GUI पे काम कर रहे हैं। हाँ, आप GUI पे काम कर रहे हैं ना। आपने अब GUI में भी, GUI भी क्या है अपने आप में एक प्रोसेस है GUI का भी, ठीक है। उसमें आपने कोई, मान लिया आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, राइट, आपने कोई exe फाइल अपनी रन की, उसको कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है। ठीक है। जब फाइल ओपन करनी है तो वो क्या करेगा, फाइल ओपन करने के लिए ओपन कॉल यूज करेगा, ओपन सिस्टम कॉल है, उसको करेगा। जिस तरह से आप अपने फंक्शन बनाते हो उसी तरह से ये बिल्ट इन फंक्शन है, एक तरह से API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। आपको ये इंटरफेस मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से एक फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि फाइल को ओपन करने के लिए बनाई हुई है। उस फैसिलिटी को यूज करने के लिए आपको उस ओपन सिस्टम कॉल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल आपके प्रोग्राम से हटके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम उस ओपन सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा और आपकी फाइल को ओपन करके वापस आपके पास आ जाएगा। हेलो हाँ सर, यहाँ पे लिखा हुआ है पास पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स, तो मतलब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है? सिस्टम कॉल्स को पैरामीटर बोला है या नहीं, सिस्टम कॉल्स को पैरामीटर्स नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा ना, देखो, जैसे मैंने लिखा ओपन, उसके बाद मैंने लिखा मोड, यहाँ पे मोड है, फिर उसके बाद मान लिया फाइल नेम है और कुछ और भी पैरामीटर होते हैं एक दो इसके अंदर। तो ये पैरामीटर्स हैं। जैसे फंक्शन होता है ना, आपने फंक्शन देखा है, मान लिया ये है sqrt, कोई फंक्शन है x जो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, तो ये पैरामीटर है। इसी तरह से ये पैरामीटर्स हैं इसके। तो ये पैरामीटर्स हम रजिस्टर्स में रख सकते हैं या इनको एक टेबल में रख सकते हैं। ये बता रहा है कि 3 तरीके से कर सकते हैं या फिर इसको स्टैक में कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे इसने ये बताया है कि जो सिस्टम कॉल्स के पैरामीटर्स हैं, हर सिस्टम कॉल के कुछ देखो 2 तरह के पैरामीटर होते हैं। जब आप वहां चले गए तो मैं बता देता हूँ। एक होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, एक होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, जब उनको कॉल करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने सिस्टम कॉल ओपन तो कर दिया, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हम रजिस्टर्स में स्टोर करें, या हम स्टैक में स्टोर करें, या एक टेबल है मेमोरी की उसमें स्टोर करें। तीनों तरीके से कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर वी वांट टू स्टोर द पैरामीटर्स ऑफ ए सिस्टम कॉल। ठीक है, ओके सर। हेलो सर, ये स्टैक का कोई एग्जांपल मिलेगा? मतलब क्योंकि स्टैक में तो ये होता है ना कि जो लास्ट में आएगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ना। देखो ये मतलब अगर जैसे ये मान लिया मेरा स्टैक है, इसमें P1 P2 P3 ये पैरामीटर है, मान लिया 4। चारों पैरामीटर मैंने इसके अंदर पुश कर दिए, तो मैं उसी ऑर्डर में पुश करूंगा। मुझे पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ठीक है। तो जो मुझे सबसे पहले पैरामीटर देना होगा उसको मैं लास्ट में पुश करूंगा। ठीक है सर। राइट? यस सर। तो टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स की मैं बात कर रहा था। एक तो इसमें प्रोसेस कंट्रोल वाली सिस्टम कॉल्स है, राइट। प्रोसेस कंट्रोल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोसेस। फॉर्क चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं। एग्जिट है, किल ए प्रोसेस। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स व्हिच आर हैंडी इन प्रोसेस कंट्रोल। फाइल मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया अभी कि ओपन,
क्लोज, रीड। फाइल प्रोग्रामिंग किस किसने की है? की होगी आप लोगों ने सी में, C++ में फाइल प्रोग्रामिंग। तो ओपन है, क्लोज है, रीड राइट है, fseek है, append है। There are various types of calls for file management. Then we have device management. डिवाइस मैनेजमेंट में आपका लाइनेक्स की अगर बात करें तो लाइनेक्स तो डिवाइस को भी फाइल की तरह से ट्रीट करता है। तो जो फाइल वाली कॉल है वही चल जाती है, बट दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जो डिवाइसेस को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, तो डिवाइस को मैनेज करने के लिए वी नीड सेपरेट सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स। ओके, फिर हमारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए सिस्टम कॉल्स होती हैं और कम्युनिकेशन के लिए सिस्टम कॉल्स होती हैं। जैसे मैंने बताया सेंड एंड रिसीव, मैसेज सेंड करना है और मैसेज रिसीव करना है। तो दीज आर द सिस्टम कॉल्स व्हिच आर यूज्ड। So this is the one example of the MS-DOS execution. कर्नल होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है, बाकी सारा एरिया जो है मेरा वो फ्री है यूजर के लिए इनिशियली, बट उसके बाद जब प्रोसेस आ गया कोई तो कर्नल और कमांड इंटरप्रेटर अपना एरिया लेगा ही लेगा। उसके बाद कुछ प्रोसेस जो है वो अपना ऑक्यूपाई करेगा और ये मेरी मेमोरी अभी फ्री है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ये यूनिक्स का बात किया इन्होंने, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स मेरे एक साथ अवेलेबल है, कर्नल, प्रोसेस बी, इंटरप्रेटर, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी। So this is one example when more than one programs are in the memory available simultaneously. Okay, this is the basically the communication model. कैसे मैसेज पासिंग और शेयर मेमोरी के हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये वाला मेरा जो एग्जांपल है ये शेयर्ड मेमोरी का है, ठीक है। ये एक मेमोरी है जो शेयर कर रहे हैं दोनों प्रोसेस, प्रोसेस ए बी, प्रोसेस बी बी। प्रोसेस ए ने इसमें कुछ राइट किया, प्रोसेस ए को प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना है। तो प्रोसेस ए ने क्या किया, जो शेयर्ड मेमोरी में किसी एरिया में यहाँ पे मान लिया कुछ राइट कर दिया। नाउ दिस इज एक्सेसिबल टू प्रोसेस बी आल्सो। तो ये प्रोसेस बी को मिल गया और प्रोसेस बी और प्रोसेस ए के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, राइट। बट if this shared memory concept is not available and process A wants to communicate with process B, it will use the send primitive provided by the kernel. कर्नल की जिम्मेदारी है कम्युनिकेशन मॉडल प्रोवाइड करना। तो सेंड प्रिमिटिव, सेंड सिस्टम कॉल यूज करेगा प्रोसेस से एंड उसमें बताएगा कि आई वांट टू सेंड ए मैसेज M to process B, and then this received, with the help of this received primitive, the process B will be able to get this message. So system programs, I was talking about operating system is a system program. What is the difference between system program and application program? Can any of you tell me? Hello. हेलो। सर आई एम नॉट श्योर बट जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं हाँ, मेनली हार्डवेयर में जो फंक्शन, हार्डवेयर जो अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है वो हाँ, मेनली उसके लिए हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं। और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उसके जो एप्लीकेशंस हो गए, मतलब जो उसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया या और भी एप्लीकेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो उनके बीच के उनसे उनके DBMS is system program और application program? यस सर। Database management system. डेटाबेस के लिए सर डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई है आपके पास, मान लिया Oracle ही आपने डाउनलोड किया हुआ है, Oracle आपने इंस्टॉल किया हुआ है, इज इट अ सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम? सर एप्लीकेशन प्रोग्राम होना चाहिए सर। नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं आपको, एक तो चीज आपने बोला कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जनरली करते हैं, नॉट नेसेसरली, है ना।
इनको डेवलप करने के लिए हार्डवेयर की नॉलेज की जरूरत होती है जनरली, बट नॉट नेसेसरली। बेसिकली बेसिक डिफरेंस ये है, सिस्टम प्रोग्राम्स हेल्प्स अस टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, राइट? ओके सर। डेवलप सर कोई एग्जांपल? ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा सर। ठीक है ना? अगर आपको कोई डेटाबेस एप्लीकेशन है बनानी है, तो वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा। मान लिया कोई आपने ऑरेकल यूज करके कोई डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप किया, राइट? तो वो जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किया वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, बट जो ऑरेकल है वो अपने आप में एक सिस्टम प्रोग्राम है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स यूज करके आपने कुछ बनाया, तो लाइनेक्स इज ए सिस्टम प्रोग्राम, बट योर प्रोग्राम इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो सिस्टम प्रोग्राम्स को हम फाइल मैनिपुलेशन प्रोग्राम, स्टेटस इंफॉर्मेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट, मान लिया आपकी बैकअप यूटिलिटी, एक आपकी यूटिलिटी प्रोग्राम भी होता है, एक बीच की चीज होती है। मान लिया एक आपके हुए सिस्टम प्रोग्राम, ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, बीच में आपके आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम, है ना? मान लिया आपकी बैकअप यूटिलिटी है, तो वो या आपकी डिफ्रैगमेंटर है, तो दीज आर यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ओके, कंपाइलर है आपके, लोडर है आपका, कम्युनिकेशन करने के लिए प्रिमिटिव्स है, वो सारे दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम प्रोग्राम। सर हाँ, सर ओरेकल हमारा सिस्टम प्रोग्राम कैसे हो जाएगा? ओरेकल को खुद चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए होगा। तो कौन मना कर रहा है? सर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ठीक है ना? सर लेकिन मैंने क्या बताया, अच्छा एक और बताओ, डीबीएमएस क्यों बोलते हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सिस्टम है अपने आप में। वो सिस्टम आपको न्यू एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को यूज करने के लिए, इसी तरह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो आपका ओरेकल हो, चाहे आपका साइबेस हो या इनग्रेस हो, कोई भी डेटाबेस हो, तो वो दैट विल कम अंडर द सिस्टम प्रोग्राम कैटेगरी, बिकॉज वो आपको दूसरी एप्लीकेशन डेवलप करने में सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो एमएस डॉस हिस्ट्री हो गया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें एक लेयर आर्किटेक्चर होती है। रॉम बायस डिवाइस ड्राइवर, कल हम बात कर रहे थे, रॉम में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, और उसके ऊपर एमएस डॉस के डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और उसके ऊपर आपके रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, और उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर एमएस डॉस की रहती है, बट you are not going into detail of that. Unix और Linux, बेसिकली Linux जो है वो Unix से इंस्पायर्ड होके ही बना, सन माइक्रो सिस्टम का था, तो Unix उसके बाद में फिर ओपन सोर्स आया, लाइनस टोरवाल्डो की एक दिमाग में आया कि चलो ओपन सोर्स बनाते हैं, और उसके बढ़ते बढ़ते आज Linux ने सब ऑपरेटिंग सिस्टम को पीछे छोड़ दिया जहां तक देखा जाए तो इसमें दो चीजें हैं मेन, एक सिस्टम प्रोग्राम्स हैं और कर्नल है, राइट? सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है आपकी, जो आपको यूजर के साथ जुड़ने का इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कर्नल क्या है? कर्नल इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कराता है, एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, process execution, process generation, process creation, process deletion, CPU scheduling. तो इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। अगर that is the part of the operating system which remains in the memory all the time, remains in memory all time, right? ये पूरे टाइम मेमोरी में रहता है कर्नल। तो यू कैन सी दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एवरीथिंग बिलो द सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड अबाउ द हार्डवेयर इज कर्नल। बेसिकली आप ये देखो, यहाँ पे हार्डवेयर है,
यहाँ पे आपका यूजर बैठा है, यहाँ पे आपके सिस्टम कॉल्स हैं, और यहाँ पे आपका कर्नल। कर्नल डायरेक्टरी हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। हेलो हाँ, सर, डिवाइस ड्राइवर कहाँ पे आएगा फिर? डिवाइस ड्राइवर्स आपका यहाँ पे आएगा। देखो मैं बताऊं, अगर ये मान लिया यहाँ पे आपका यूजर है, यहाँ पे हार्डवेयर हो गया, कर्नल हो गया, यहाँ पे सिस्टम कॉल्स हैं, यहीं पे डिवाइस ड्राइवर होगा, इसी लेवल, सिस्टम कॉल्स वाले लेवल, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। हेलो सर। सर हाँ तो कर्नल्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं ना, माइक्रो, हाँ, वो अभी आते हैं, अभी आते हैं। ठीक है विद इन 10 मिनट्स वी विल बी देयर। माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल पे आते हैं। ये एक टिपिकल यूनिक सिस्टम की आर्किटेक्चर दिखाई है। यहाँ पे आपके यूजर हैं, फिर शेल्स, कमांड कंपाइलर्स, कमांड इंटरप्रेटर, यहाँ पे सिस्टम कॉल इंटरफेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे सिग्नल टर्मिनल हैंडलिंग, यहाँ पे देखो ये कर्नल है आपका, कर्नल इंटरफेस टू द हार्डवेयर। सर हाँ, शेल्स क्या होते हैं सर? शेल मैं बताता हूँ। बेसिकली आपने लाइनेक्स में सुना होगा शेल प्रोग्रामिंग। लाइनेक्स में एक पार्ट है शेल प्रोग्रामिंग का। लाइनेक्स में क्या है कि वेरियस टाइप ऑफ शेल्स आर देयर, जैसे बी शेल है, BSH, KSH है, कॉर्न शेल। तो शेल में आप क्या करते हैं कि लाइनेक्स की जो कमांड्स हैं उसमें आप प्रोग्राम बनाते हैं शेल प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। और मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके, सॉरी मल्टीपल कमांड्स जो हैं लाइनेक्स के, वो एक शेल फाइल के अंदर आप उनको स्ट्रक्चर कर सकते हो, सीक्वेंस कर सकते हो, ठीक है। पहले ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट, पहले ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर इफ लूप भी आता है, फॉर लूप भी आता है, तो यू कैन हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोग्रामिंग सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन दिस शेल प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम लाइनेक्स के जो बेसिक कमांड्स हैं, ठीक है, उनको यूज करके एक फाइल जनरेट कर देते हैं, और उस फाइल को जब भी हम, दीज फाइल्स आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। ओके सर। सर ये बाय डिफॉल्ट भी करना पड़ता है क्या कुछ इसमें? नहीं नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट की जरूरत नहीं है। मान लिया हर बार जब भी मैं आता हूँ, मैं अभी अगली इसमें दिखाता हूँ आपको स्लाइड में, एक सैंपल बना के दिखाता हूँ। मान लिया मुझे क्या करना है, जब भी मैं लॉगिन करता हूँ, मुझे डेट देखनी है, टाइम देखना है, लिस्ट करनी है फाइल की, ठीक है, कैलेंडर देखना है। ये 4 कमांड मुझे हर बार एग्जीक्यूट करने हैं। एक तरीका तो यह है, जब भी मैं डॉलर होता है ना इसमें प्रॉम्प्ट लाइनेक्स में, जब भी मैं यहाँ आऊँ, यहाँ पे मैं चारों कमांड को टाइप करूँ। एक दूसरा तरीका यह है, मैंने इन चारों कमांड्स को एक फाइल b1.sh में स्टोर कर लिया। b1.sh, और उसको जब मैं b1 को टाइप करके एंटर मारूंगा, तो ये चारों कमांड, पहले मेरा ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरा ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा। और इसको मैं दोबारा फिर करना है, तो फिर मैंने b1 करके एंटर कर दिया, ठीक है। ओके समझ में आया। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि इफ टाइम इज ग्रेटर देन दिस, तब ये ls कमांड चले, नहीं तो ना चले। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं इसके अंदर। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, कई तरह से बन सकता है। एक उसमें है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर होती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए, इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने लेयर्स में डिजाइन कर दिया। ये लेयर मेरी M-1 है, ये वाली जो लेयर है, दिस इज लेयर M-1, दिस इज लेयर M,
ये वाली जो लेयर है ये लेयर M है, तो लेयर M-1 की सर्विसेज लेयर M यूज करेगा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, इसकी सर्विसेज यूज करके कुछ नई सर्विसेज जनरेट करेगा, ओके। तो इसमें डिबगिंग आसान हो जाती है, अगर एरर है तो हमें पता लग जाता है कहाँ पे एरर है। बट इस तरह की अगर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 या 10 लेयर्स हैं तो डिले बढ़ जाता है। इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है, डिबगिंग इज इजी। डिसएडवांटेज क्या है, डिले इज वेरी मच, क्योंकि मुझे लोएस्ट लेयर इसमें हार्डवेयर होती है, लोएस्ट लेयर इज हार्डवेयर एंड हाईएस्ट लेयर इज यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट। सो इसमें यह है कि लेयर M-1 की सर्विस यूज करती है और लेयर M+1 को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मुझे अगर लोएस्ट लेयर पे जाना है तो बीच की सारी लेयर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास यहाँ पे 10 लेयर्स हैं, आई हैव 10 लेयर्स, तो अगर यूजर को वांट टू एक्सेस लेयर 0, तो यूजर पहले लेयर 10 से लेयर 9 पे जाएगा, लेयर 9 से लेयर 8 पे जाएगा, फिर लेयर 7 पे, फिर लेयर 6 पे, और करते करते लेयर 0 पे आएगा। तो इसमें एडवांटेज एक इसका ये है कि मॉड्यूलर डिजाइन है, मॉड्यूलर डिजाइन है तो डिबगिंग आसान हो जाती है। बट डिले इसमें इतना ज्यादा होता है कि दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेयरली डिजाइन्ड, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई वाज डिस्कसिंग दिस। Now, as I told you, the kernel is the most essential part. There can be two types of kernels. One is microkernel, and second is monolithic kernel. And what type of kernel we are using, that will also decide the operating system architecture. So first we will discuss the monolithic kernel. So monolithic kernel is very large. Basically, the entire operating system is in the kernel portion, most of the operating system. अगर मैं कहूँ OS इतना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इतना है, तो कर्नल मेरा इतना है। तो move as much from the kernel into user space. Communication takes place between user modules. एक मिनट, अच्छा ये माइक्रो कर्नल की बात कर रहा है पहले माइक्रो कर्नल की बात कर लेते हैं, मोनोलिथिक कर्नल की बाद में बात करेंगे। तो मोनोलिथिक कर्नल में अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा है तो कर्नल मेरा इतना बड़ा होगा, बस। बाकी सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट दिस इज नॉट द कर्नल, राइट। द एडवांटेज इज हम ज्यादातर पोर्शन को यूजर स्पेस में ले आते हैं। कल हमने दो मोड डिस्कस किए थे, वन वाज द यूजर मोड एंड सेकंड वाज द कर्नल मोड और प्रिविलेज्ड मोड। सो बेसिकली दिस पार्ट इज द कर्नल मोड, जो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होगा। कर्नल हमेशा कर्नल मोड या प्रिविलेज मोड में एग्जीक्यूट होता है क्योंकि इसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। बट जितना ये पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का है ये यूजर मोड में एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो यूजर के साथ जब यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा तो मैसेज पासिंग के थ्रू होगा। जितने भी प्रोसेसेस यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के चलेंगे, दीज विल बी द नॉर्मल यूजर, लाइक द नॉर्मल यूजर प्रोसेसेस। यहाँ पे मेरे प्रोसेस यूजर के चल रहे हैं, ये मान लिया P1 है, सपोज दिस इज माय P1, suppose this is my P2. This want to execute, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जैसे दूसरे प्रोसेस के साथ होगा, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ये O1 है, ये O2 है मान लिया, जैसे उसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है इसी के साथ इसके साथ कम्युनिकेशन होगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसी एक्सटेंडेबिलिटी इसकी बहुत बड़ी है, एक्सटेंसिबिलिटी। इसको जब भी कोई नई सर्विस मुझे ऐड करनी है, कर्नल को बिना छेड़े मैं इसमें नई सर्विस ऐड कर सकता हूँ। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये मेरा कर्नल था, एक नई सर्विस और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ये मर गया मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नई सर्विस मुझे और ऐड करनी है, वो इसके साथ मैंने ऐड कर दी, आई नीड नॉट टू टच दिस कर्नल, ओके।
secondly it is easier to port the operating system to new architecture. क्योंकि ये कर्नल वाला पार्ट है ना, दिस इज स्पेसिफिक टू द आर्किटेक्चर. ये पोर्शन जो है ये वही बंदा लिख सकता है जिसको कि प्रोसेसर की आर्किटेक्चर का पता हो. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टरी करनी है तो यू मस्ट नो द कंप्यूटर आर्किटेक्चर पार्ट आल्सो. और कल के लेक्चर में भी हमने बहुत सारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस किया था. तो बेसिक थिंग इज दैट कि कर्नल पोर्शन को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि प्रोसेसर की आर्किटेक्चर आपको समझ में ना आए. प्रोसेसर आर्किटेक्चर specific. This is kernel is basically architecture specific, but since this is a small part, अगर मुझे ये मान लिया एक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास OS X, मान लिया इसका मैंने नाम दे दिया, ये प्रोसेसर P1 के लिए बनाया मैंने. अब इसको मुझे पोर्ट करना है P2 पे, ठीक है. सो सिर्फ ये पोर्शन ऐसा है जो कि ऑपरेटर स्पेसिफिक है, तो मुझे चेंज जो है ये वाला पोर्शन करना पड़ेगा. इस सारे पोर्शन में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आया आपकी क्यों ये पोर्टेबिलिटी आसान हो जाती है इसकी माइक्रो कर्नल की. ओके, थर्ड एडवांटेज इज रिलायबल. क्यों रिलायबल है? आप समझो कि सिर्फ इतना कोड प्रिविलेज मोड में चल रहा है, यानी कि जो उस्तरा है वो बंदर के हाथ में नहीं है, किसी जिम्मेदार आदमी के हाथ में है. उस्तरा क्या है? डिसेबल इंटरप्ट करना. अगर मैं किसी गैर जिम्मेदार प्रोसेस को ये जिम्मेदारी दे दूं कि तू प्रिविलेज मोड में रन कर ले अपने आप को, तो क्या करेगा? डिसेबल इंटरप्ट कर सकता है. और एक बार डिसेबल इंटरप्ट हो गए तो फिर दूसरा कोई इसको इनेबल नहीं कर पाएगा. तो कम से कम कोड मेरा कर्नल मोड में चल रहा है, तो ये मेरे सिस्टम को रिलायबल बना देता है और सिक्योर भी बना देता है. So these are the advantages of the microkernel, and generally microkernel architecture is preferred over the monolithic kernel architecture. इसमें monolithic का मैं बता देता हूँ आपको. monolithic में क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये इतना पोर्शन मेरा कर्नल है, बाहर बहुत थोड़ा बच गया. अब इसमें हुआ क्या, मान लिया मुझे कोई छोटे सी चीज में चेंज करना है किसी पॉलिसी में, वो भी कर्नल मोड में है, तो मुझे पूरे कर्नल को दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोबारा से इसको कंपाइल करना पड़ेगा, दोबारा से इसको इकट्ठा करके दोबारा से कोड में चेंज करके अगेन आई हैव टू रिकम्पाइल ऑल द थिंग्स. ओके, तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सेकेंडली वही चीज है कि इसकी पोर्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कर्नल इज जनरली प्रोसेसर स्पेसिफिक. रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, तो जनरली हम माइक्रो कर्नल यूज करते हैं. इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल? जो मोनोलिथिक है वो कम सिक्योर भी होगा ना? हाँ, सिक्योरिटी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि मोनोलिथिक कर्नल इज लेस सिक्योर, क्योंकि उसमें हमारा कर्नल मोड में ज्यादा कोड चल रहा है. जितना कोड कर्नल मोड में चलेगा उतना सिक्योरिटी पे इफेक्ट आता चला जाएगा. ठीक. हेलो हाँ जी सर, कर्नल में कोड चलने से मतलब क्या दिक्कत आएगी अगर? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना. देखो बात ये है कि आप ये देखो, ये आपका कर्नल मोड है. मैंने बताया था कल आपको दो मोड है, एक तो कर्नल मोड होता है और एक होता है यूजर मोड. राइट, यूजर मोड में सर्टेन इंस्ट्रक्शंस है which cannot be executed, whereas in kernel mode all the instructions can be executed. इसको हम privilege mode भी बोलते हैं. राइट, तो वो इंस्ट्रक्शन कौन सी हैं? एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है, और भी इंस्ट्रक्शंस हैं. एक एग्जांपल है DI, दैट इज डिसेबल इंटरप्ट्स. राइट, तो ये जब मेरे पास ये अगर मैंने किसी प्रोसेस को ऐसे को दे दिया जिसको अपनी जिम्मेदारी का, क्या करते हैं हम डिसेबल इंटरप्ट क्यों करते हैं? कई बार हम ये चाहते हैं कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बीच में कोई डिवाइस भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, और कोई ऐसी इवेंट हो तो उसको भी मैं इग्नोर करूं फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, तो मैं डिसेबल कर देता हूँ इंटरप्ट को थोड़ी देर के लिए, और जब वो काम पूरा हो जाता है मैं इनेबल कर देता हूँ. ठीक है, तो ये सिर्फ कर्नल मोड में पॉसिबल है. अब अगर मैंने ये फीचर यूजर मोड में भी दे दिया
तो डिसेबल, मान लिया किसी को मैलिशियस कोड लिखना है, या कोई मेरे जैसा पुअर प्रोग्रामर है, उसने डिसेबल इंटरप्ट तो कर दिया, इनेबल करना भूल गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो फिर वो डिसेबल ही रह जाएगा इंटरप्ट, बाकी को वो कभी इनेबल होगा ही नहीं। बाकी जो प्रोसेसेस हैं जब शटडाउन करेंगे सिस्टम उसके बाद इनेबल हो तो हो, बाकी जो डिवाइसेस हैं वो इंटरप्ट जनरेट करती रहेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टेक केयर नहीं करेगा। तो कर्नल मोड प्रिविलेज्ड है, तो प्रिविलेज हमेशा जो अधिकार है वो ऐसे आदमी को मिलना चाहिए जो जिम्मेदार हो, ठीक है ना। अब जो जिम्मेदारी है वो आपकी जिम्मेदारी के साथ पावर मिलनी चाहिए, मेरा पर्पस ये था। तो कर्नल मोड में वो सिर्फ वो कोड एग्जीक्यूट हो जो कि वेल रिटन है और जिसमें गड़बड़ की गुंजाइश कम है। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर मोनोलिथिक की कुछ बेनिफिट्स? मोनोलिथिक के बेनिफिट यही है कि एक सिंगल यूनिट है पहली बात, ठीक है। उसको डिजाइन अब आपको बहुत मॉड्यूलर नहीं बनाना पड़ेगा, अलग अलग उसमें डिजाइन नहीं करना। और दूसरी चीज थोड़ा आसान भी हो जाता है, जब आपके पास प्रिविलेज है तो उसको डिजाइन करना आसान हो जाता है। मान लिया जो सारी इंस्ट्रक्शंस मेरे पास अवेलेबल है फॉर द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। मान लिया कोई कोड मुझे यूजर मोड में करना है, जो फैसिलिटी मेरे पास कर्नल मोड में अवेलेबल थी वो यूजर मोड में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, कई बार होता है ऐसा। ठीक है सर। सर मोनोलिथिक का कोई मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहीं पे यूज होना कोई एग्जांपल है अभी डिवाइस में यूज होता हो मोनोलिथिक? मोनोलिथिक शायद OS2 में यूज होता है। किसमें सर? OS2 करके ऑपरेटिंग सिस्टम एक था, OS2 मैं बताता हूँ भी। एक जो मैंने लेयर्ड आर्किटेक्चर बताई ना, उसका एक एग्जांपल है THE, दी ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक OS2 था, IBM यूज करता था इसको, IBM OS2, ठीक है। तो ये आपका मोनोलिथिक कर्नल है। ओके सर। और जो माइक्रो की बात करता है तो लाइनेक्स जनरली आपका मोनोलिथिक माइक्रो कर्नल यूज करता है। खास तौर से जो आपके रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं वो भी आपके माइक्रो कर्नल यूज करते हैं, ठीक है। और विंडोज में थोड़ा सा कुछ हाइब्रिड है, ज्यादातर इसको माइक्रो कर्नल की तरह से बात करते हैं, बट इसमें हाइब्रिड कह सकते हैं इसमें। ओके सर। ओके, अब हम प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। पहली चीज तो ये है। तो एक सेकंड, सॉरी। ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये मेरा हार्ड डिस्क है, ये मेरा रैम है, ये मेरा CPU है। जब तक मेरा प्रोग्राम यहाँ बैठा है, मेरा कोड यहाँ बैठा है, तब तक ये है प्रोग्राम, ठीक है। Now suppose I want to execute this. I will give the instruction to the operating system. The loader will allocate some memory to it here, and that will be loaded. My program will be loaded here. Now this becomes process, right? Now it is an active entity. Program is a passive entity. And process is an active entity, right? अब ये प्रोग्राम एक्टिव हो गया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसको शेड्यूल भी कर सकता है। और प्रोग्राम में सिर्फ कोड होता है, प्रोग्राम कंटेन्स कोड ओनली, और तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, बाइट्स हैं। इसमें कोड के साथ साथ और चीजें भी होती हैं। कोड होता है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर आप लोग समझते हैं? कौन बताएगा मुझे प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? सर इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर इज ए रजिस्टर व्हिच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू के अंदर ये होता है। तो हर देखिए ना, ये मान लिया मेरा प्रोसेस है, ये इतनी बाइट्स हैं।
अभी वो इस इंस्ट्रक्शन पे है, इस इंस्ट्रक्शन पे है, कहां से पता लगेगा? ये मुझे पता लगेगा प्रोग्राम काउंटर से। तो हर प्रोसेस की कौन सी इंस्ट्रक्शन अभी एक्टिव है उसका यहाँ से पता लग जाएगा। एक इसके साथ स्टैक एसोसिएटेड होता है, एक इसका डेटा सेक्शन भी है, इसके साथ कुछ डेटा भी एसोसिएट है। यहाँ पे जब ये प्रोग्राम फाइल है, मान लिया कोई आपकी a.exe, ये बस सिर्फ एक कोड है और कुछ इसके साथ एसोसिएट नहीं है। यहाँ पे इसके साथ स्टैक भी एसोसिएट हो गया, एक प्रोग्राम काउंटर एसोसिएट हो गया, डाटा सेक्शन एसोसिएट हो गया और बहुत सारी चीजें जो एसोसिएट हो जाती हैं, which we will discuss in a while. Okay. तो प्रोसेसेस की इंटरलीविंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करता हूं तो मोर देन वन प्रोसेसेस आर देयर इन द सिस्टम। मान लिया एक टाइम पे दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, राइट? तो इनका एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 1 पहले पूरा फिनिश हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा। इट मे बी इंटरलीव्ड, देयर मे बी, दिस इज द सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस 1 एंड 2। पहले प्रोसेस 1 फिनिश हो गया, उसके बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, जब ये फिनिश हुआ उसके तुरंत बाद प्रोसेस 2 एग्जीक्यूशन होना शुरू हुआ। ये सीरियल एग्जीक्यूशन है, बट दिस जनरली डज नॉट हैपन, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्रोसेस है वो इस तरह चलता है, सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, फिर सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, एंड लाइक दिस। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको सीपीयू की जरूरत होगी, उसके बाद इसको आईओ की जरूरत होगी, फिर सीपीयू की जरूरत होगी, फिर आईओ की जरूरत होगी। तो जब ये प्रोसेस आईओ की जरूरत में पड़ेगी इसको, तब हम सीपीयू प्रोसेस P2 को दे देंगे। तो ये मेरा इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन दिखा रहा है। पहले प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुआ, फिर सीपीयू हमने प्रोसेस 2 को दे दी, तो प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट हो गया, फिर 1 के पास चली गई, फिर 2 के पास आ गई, फिर 1 के पास चली गई, फिर 2 के पास आ गई। तो इस तरह से ये मेरा इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन चलता है। एक ही सीपीयू एक ही है मेरे पास। हम चूंकि इस पूरे कोर्स में जनरली सिंगल सीपीयू की ही बात करेंगे, ये मान के चलिए कि आपके पास सीपीयू एक ही है, बट वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन की डायरेक्शन में हम चलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस जब 5 स्टेट में हो सकता है, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी and terminated. New means a new process has been created. जब एक प्रोसेस नया क्रिएट होता है तो वो होता है न्यू स्टेट में, राइट? अब न्यू तो ये है, अब ये रेडी भी हो सकता है। जनरली प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, if the process is ready to be executed, तो वो चला जाएगा रेडी स्टेट में। अगर उसको सीपीयू एलोकेट हो गई तो बन जाएगा रनिंग, क्योंकि वो अभी सीपीयू को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर वो किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना चला गया तो उसकी स्टेट हो जाएगी वेटिंग, और उसने अपना अगर काम फिनिश कर लिया तो टर्मिनेट हो जाएगा और उसका काम फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेटेड। 5 स्टेट हुई, न्यू, देन रेडी, running, then waiting, and 5th one is terminated, right? तो न्यू का मतलब ये है कि प्रोसेस नया क्रिएट हुआ है, रेडी का मतलब ये है कि प्रोसेस रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट उसे सीपीयू नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, तो ये वेट कर रहा है। रनिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस को सीपीयू मिल गया और प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट कर रहा है। वेटिंग का मतलब यह है कि प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट कर रहा है, और ये अभी अगर इसको सीपीयू दे भी दिया जाए तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और टर्मिनेटर का मतलब यह है कि प्रोसेस ने अपना काम फिनिश कर लिया या ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको टर्मिनेट कर दिया तो इस सिस्टम से एग्जिट कर जाए। 5 स्टेट क्लियर है आपको? तो हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर है। ये देखिए,
सिस्टम जब क्रिएट होता है तो न्यू स्टेट में होता है और ये रेडी भी होता है, क्योंकि इसको पहला जो किसी भी प्रोसेस का पहला जो बर्स्ट होगा वो सीपीयू होगा और लास्ट भी सीपीयू होगा, बीच में उसके आईओ बर्स्ट आएंगे, फिर सीपीयू आएगा, फिर आईओ आएगा, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑलवेज सीपीयू, राइट? ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो न्यू प्रोसेस जैसे ही एडमिट किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है, देयर मे बी मोर देन वन रेडी प्रोसेसेस अवेलेबल इन द सिस्टम फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट सिंस वी हैव ओनली वन सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम मे एलोकेट द सीपीयू टू ओनली वन प्रोसेस। ओके, तो रेडी में से कोई जो भी किसी एक को उसने शेड्यूलर सेलेक्ट किया, शेड्यूलर उसको डिस्पैच करेगा और वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाएगा, राइट? अब रनिंग स्टेट से 3 ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, या तो ये रेडी में जा सकता है, वेटिंग में जा सकता है, एग्जिट में जा सकता है। किस केस में कहा जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये प्रोसेस मान लिया रन कर रहा है, इसने अपना काम फिनिश कर लिया, तो ये काम फिनिश हो गया तो बाहर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, राइट? अगर ये किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेट कर रहा है, मान लिया सीपीयू बर्स्ट इसका खत्म हो गया और इसको किसी डिवाइस से, किसी कीबोर्ड से, किसी प्रिंटर से बात करनी है, तो ये इनपुट आउटपुट की इवेंट के लिए वेट करेगा और वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, राइट? वेटिंग स्टेट में जब वो इवेंट इसकी फिनिश हो जाएगी, मान लिया जिसको कोई डिवाइस से कोई डेटा चाहिए था, वो डिवाइस से डेटा मिल गया, तो ये रनिंग में नहीं जाएगा वापस, ये रेडी में जाएगा। क्योंकि क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम वेट नहीं करेगा इसकी, भैया तुम डिवाइस से अपना काम खत्म करके आओगे, उसके बाद आपके लिए मैं वेट करूंगा बैठ के पलक पावड़े बिछा के, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू तब तक मिल चुका होगा। तो जो प्रोसेस ये वाला प्रोसेस जो वेट कर रहा था, जब ये कंप्लीशन हो गया तो ये वेटिंग स्टेट से जाएगा रेडी स्टेट में, और जब दोबारा इसको शेड्यूलर सेलेक्ट करेगा तब जाके ये रनिंग स्टेट में आएगा। ओके, अब प्रोसेस को कई बार रनिंग से सीधा रेडी में ले जाना पड़ता है, इसको इनपुट आउटपुट की जरूरत नहीं है, ना ये किसी इवेंट के लिए वेट कर रहा है, बट कोई इंटरप्ट आ गया, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ऐसी सर्विस है जिसको तुरंत जरूरत है प्रोसेसर की, तो उस केस में इससे जबरदस्ती सीपीयू हम छीन लेंगे, जबरदस्ती सीपीयू छीन के इसको रेडी स्टेट में डाल देंगे, एंड दिस विल बिकम फ्रॉम रनिंग टू रेडी। ओके, दिस प्रोसेस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए मेरे से। सर ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है या डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे? नहीं, दिस इज द बेसिक। कुछ में ना 5 से ज्यादा स्टेट में हो सकती है, 6, बट दीज 5 स्टेट्स आर बेसिक, ये सब में होंगी ऑलमोस्ट। नाम कुछ और रख दिया है ना, या किसी में 6 हो सकती है, उन्होंने एक और स्टेट ऐड कर दी, या 7 भी हो सकती है, बट बेसिक एक जो है ना, बेसिक वर्किंग यही है, इसी तरह से काम करता है प्रोसेस। अच्छा सर, ओके सर। Because in this course we are not discussing any specific operating system. बाद में हो सकता है हम करें, Linux और Windows में अगर समय अलाउ करेगा तो हम कुछ देखेंगे कि कौन कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहाँ यूज होते हैं, उनके कंपैरिजन में क्लास ले लेंगे Windows और Linux पे, then you will come to know कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से कंसेप्ट हमने पढ़े थे वो किस तरह से यूज हो रहे हैं, right? But right now you assume that this is the working of a basic operating system. इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं जब भी डिजाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बेसिक ये हो, ठीक है? तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आई विल बैक इन 5 मिनट्स।
Any questions? सर Yes. सर जो ये शेड्यूलर डिस्पैच है ये बेसिकली ये चेक करेगा कि सीपीयू अभी अवेलेबल है या नहीं। एक्चुअल में जब सीपीयू अवेलेबल होगा तो एक शेड्यूलर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। कई तरह के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, वो शेड्यूलर का भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। बट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी ये होती है जब भी कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए गया या बाहर निकला तो रेडी क्यू में से एक सेलेक्ट करना। बहुत सारे प्रोसेस रेडी क्यू में लगे होंगे, उनमें से एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना। ठीक है, ये शेड्यूलर करेगा। अब एक डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर का काम ये है कि उस प्रोसेस को सीपीयू में डाल के उसको एग्जीक्यूशन उसका शुरू कराना। समझे? सर ये जो 3 तरह के शेड्यूलर्स होते हैं ये आएंगे, अभी आएंगे, इसी लेक्चर में आ जाएंगे। ठीक है, वेट करो। हेलो सर। हाँ जी सर, जैसे जब हम सीपीयूज में कोर्स की बात करते हैं तो सर हाँ। जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रनिंग वाला वो होता कहाँ पे है, वो जो कोर्स डिसाइड करता है वो कौन करता है? कोर की बात करो, मल्टीपल कोर्स। हाँ सर, अगर मल्टीपल कोर्स हो तो कोर्स के हिसाब से भी तो करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम चालू। नहीं, मैंने आपको जो बताया था ना, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आएगी उसके अंदर। ठीक है, तो जब पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आएगी तो आपको देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग है या एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग है। अभी हम यहाँ पे सिंगल सीपीयू की ही बात करेंगे जितनी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मल्टी कोर सिस्टम्स की, जिसमें कि आपका मल्टी कोर है, मान लिया 4 कोर्स हैं आपके पास, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मल्टी प्रोसेसिंग सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो चारों एक जैसी हैं और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मास्टर के ऊपर अलग चलेगा और स्लेव के ऊपर अलग चलेगा इस केस में। और मास्टर की जिम्मेदारी होती है सबको काम बांटने की। ठीक है, नहीं तो फिर मल्टीटास्किंग इसके अंदर हो जाती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में। एक कोर को एक काम मिल गया, एक दूसरे कोर को दूसरा काम मिल गया, तीसरी कोर को तीसरा काम मिल गया। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग शेड्यूलर होगा सबके लिए, सबका अपना एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम होगा। उसमें फिर क्या है ना, कोई प्रोसेस अगर मान लिया मेरे पास ये 4 कोर्स हैं, C1, C2, C3 एंड C4, तो बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। क्या हम एक सिंगल रेडी क्यू रखें? आप ना जंप कर रहे हो, अभी आएगा जब हम शेड्यूलिंग की बात करेंगे। या फिर हम अलग अलग रेडी क्यू रखें, इसके लिए अलग रेडी क्यू हो, इसके लिए अलग रेडी क्यू हो, इसके लिए अलग रेडी क्यू हो, इसके लिए अलग रेडी क्यू हो। तो शेड्यूलर, these are the design issues which a operating system designer has to take care while designing these parallel operating system. But right now my focus is a single processor operating system, the basic concept for that. ओके सर। पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना अपने आप में पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखनी होती है, और वो मेंटेन करके रखता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। वो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? अभी मेरे प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, मतलब मेरा न्यू में है कि रनिंग में है कि रेडी में है कि कौन सी स्टेट में है, राइट? मेरा फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है? अगर मेरा प्रोसेस इस इंस्ट्रक्शन पे है, जब सीपीयू से छीन लिया गया था, तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू। ओके, यू नो, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रोसेस जो है अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रजिस्टर में रखता है स्टोर करके, राइट? और हमने बीच में प्रोसेसर दूसरे प्रोसेस को दे दिया, तो वो इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर में थी, वो इंफॉर्मेशन भी प्रोसेस को कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि जो दूसरा प्रोसेस आएगा वो मेरी इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो ये सीपीयू रजिस्टर्स प्रोसेस से करस्पॉन्डिंग जो है उनको हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा।
शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन कुछ है तो क्वांटम वगैरह मुझे उसका बारे में पता करना पड़ेगा। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग ये इंफॉर्मेशन जो है वो पीसीबी में स्टोर होती है, और हर प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग एक पीसीबी होगा। P1 का अपना पीसीबी होगा, P2 का अपना पीसीबी होगा, है ना। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एक्टिव प्रोसेसेस हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया। जनरली क्या है ना, एक लिंक लिस्ट बनती है। एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो, हाँ विनोद जी, नमस्कार सर। मेरी क्लास है, कोई जरूरी बात है तो बताएं। जी नहीं, वो जो पीछे है ना हमारे, उनसे बात करी थी हमने। So basically, you see that this is a typical process control block, जिसमें कि मैंने बताया था कि जितने प्रोसेसेस हैं, मान लिया 4 प्रोसेसेस है, 4 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे 4 पीसीबी। तो इनको एक हम लिंक लिस्ट की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ये एक पीसीबी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये एक पॉइंटर की हेल्प से जुड़े होंगे। राइट, तो ये पॉइंटर वो पर्पस है। ये मुझे प्रोसेस की स्टेट बताएगा। हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पीआईडी। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग नाम मिल सकता है, वैसे जनरली हम इसको बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कैसे हम पहचान करेंगे किस प्रोसेस की, वो पीआईडी से हो जाती है। प्रोग्राम काउंटर मैंने आपको बताया है कि कहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है करंट। दिस इज अबाउट द रजिस्टर्स। जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, यहाँ पे मान लिया सीपीयू किसी वजह से छीन के किसी दूसरे प्रोसेस को देनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे जो रजिस्टर्स की वैल्यूज है वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं मेमोरी में। मेमोरी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। Okay, now I tell you about the context switching. This is very important part. And when I am executing, ये मान लिया CPU है, अभी इसमें प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो P1 का अपना एक कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ P1। नाउ P1 को निकाल के मैंने P2 डाल दिया, तो ये पूरा जो प्रोसेस है P1 को CPU से हटा के P2 को CPU देना, ऑल दिस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ये इसको मैं बोलता हूं P1 आउट हो गया, P2 इन हो गया, दिस इज नोन एज यू से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। एक प्रोसेस से सीपीयू छीन के या एक प्रोसेस ने सीपीयू छोड़ दिया, दूसरे प्रोसेस को सीपीयू देने के बीच का जितना भी काम है उस सब को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, राइट। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में? पहले जो करंट प्रोसेस था, सपोज P1 वाज द करंट प्रोसेस, इसको एग्जिट किया और P2 को एंटर कराया, तो कॉन्टेक्स्ट मेरा स्विच हो गया P1 से P2 में, राइट। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ P1। P1 की जितनी इंफॉर्मेशन है वो मुझे इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करनी पड़ेगी। सेव इन PCB। और क्या क्या इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ेगी, जो जो मैंने पीछे बताई थी आपको। इसकी स्टेट क्या है,
क्या ये रेडी स्टेट में है कि वेटिंग स्टेट में है, इसका प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और इसका पीआईडी क्या है, इसके रजिस्टर्स की वैल्यूज क्या है, ऑल दिस थिंग हैज टू बी स्टोर्ड इन द पीसीबी ऑफ P1. सिमिलरली अब मुझे P2 को एक्टिवेट करना है, P2 की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे P2 के पीसीबी में है, तो आई हैव टू रीस्टोर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसीबी ऑफ restore information from PCB of P2. तो ये पूरा प्रोसेस P1 की इंफॉर्मेशन इसके पीसीबी में सेव करना और P2 की इंफॉर्मेशन इसके पीसीबी से उठा के रजिस्टर्स में डालना, प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू डालना और भी जो इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना, ये सारा प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, या इसको प्रोसेस स्विचिंग बोलते हैं या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं. एंड दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. significant amount of time is required, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन पीसीबी स्टोर होता है ये मेरा रैम में स्टोर होता है और मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी मेमोरी ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो this takes a significant amount of time. So generally we avoid frequent context switching, which is for not any purpose, right? ये इन्होंने बताया एक तरह से कैसे काम होता है. प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आप समझिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा डायग्रामेटिकली. प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे कुछ इंटरप्शन आया, या तो इसका क्वांटम खत्म हो गया या इसको इनपुट आउटपुट के लिए जाना है, यहाँ पे हमें प्रोसेस P0 से सीपीयू छीन के प्रोसेस P1 को देना है. तो इंटरप्ट या सिस्टम कॉल आई, हमने पीसीबी का जो स्टेटस था वो स्टेट सेव कर लिया, उसके बाद रिलोड स्टेट फ्रॉम PCB1. अब हमें प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें प्रोसेस P1 का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था उसको हमने रिस्टोर कर लिया और प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूशन शुरू करा दिया. अब प्रोसेस P1 यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमें दोबारा P0 को एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको फिर हमने दोबारा सेव कर लिया PCB1 में P1 का स्टेटस और P0 का स्टेटस दोबारा रिलोड करके एग्जीक्यूशन इसका रिज्यूम कर. Is it clear to you? Context switching? क्या कोई डाउट है? सर इसमें जो ये आइडियल दिखा रखा है उस टाइम हमारा सीपीयू आइडियल है जब स्टेट चेंज हो रही है? ये नहीं, सीपीयू आइडल नहीं है, सीपीयू आइडल नहीं है, यहाँ पे ये प्रोसेस आइडल है, यहाँ पे ये प्रोसेस आइडल है और यहाँ इस ड्यूरेशन में ये प्रोसेस आइडल है. बट सर जब हम PCB1 का मतलब प्रोसेस 1 का स्टेट हम रीलोड कर रहे होंगे उस टाइम तो हमारा सीपीयू कुछ सेकंड्स के लिए आप ये कह रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन में सीपीयू आइडल लग रहा है आपको, ना यहाँ P0 एग्जीक्यूट हो रहा है ना यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है. हाँ. है ना, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम कर रहा है ना, ये भी तो सीपीयू में कर रहा है. ऑपरेटिंग सिस्टम जितना एग्जीक्यूशन करता है सीपीयू में तो करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ इज अ प्रोसेस. हाँ, क्योंकि पीसीबी भी हमारा रैम में ही है ना, तो वो तो कर ही रहा है. नहीं, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जो होगी वो सीपीयू ही तो करेगा ना, चाहे उसको पीसीबी को सेव करना है, पीसीबी को रिस्टोर करना है. यहाँ पे ये वाला काम भी सीपीयू कर रहा है. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है जिसका काम ये है यहाँ पे PCB0 को सेव करना, यहाँ पे PCB1 को रिलोड करना. तो ये वाला जो आइडल वाला पोर्शन है यहाँ पे और यहाँ पे जो आप कह रही हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो रहा है. हाँ, यूजर का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो दिस प्रोसेस इससे आपका थ्रूपुट कम हो जाता है. जब आप फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो उससे आपका थ्रूपुट कम हो जाता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. शेड्यूलिंग में भी आपको ध्यान रखना है. जनरली हम क्या करते हैं, जब शेड्यूलिंग में कैलकुलेट करते हैं थ्रूपुट या जो कोई भी चीज, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि लेकिन उसका नेग्लिजिबल नहीं होता उस तरीके से देखा जाए तो. That takes significant amount of time. Any more doubt in this context switching? Otherwise, you will move forward. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, ये फ्लो ऑफ कंटिन्यूटी दिखाया है, जाने की जरूरत नहीं. अब आते हैं हम प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यूज पे. यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं. देखिए, किसी भी सिस्टम में जितने रिसोर्सेज हैं, जितने, चाहे आपका ये सीपीयू है, आपका हार्ड डिस्क है, आपका प्रिंटर है,
when I have multi-programming operating system, there is a contention for this. There may be several processes who are willing to execute CPU, but there is only one CPU, so we can allocate CPU to only one process. There can be multiple processes who are willing to transfer data to or from HDD, but we can allocate HDD to one process only at one point of time. Similarly for the printer. तो बाकी प्रोसेसेस का हम क्या करेंगे? मान लिया ये CPU है, CPU के लिए P1, P2 और P5 ये तीन प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है, तो हम एक क्यू बना के रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू या चॉप, ठीक है। फिर एक डिवाइस क्यू होती है, HDD के करस्पॉन्डिंग आपकी एक अलग क्यू बन जाएगी। मान लिया P3, P6 और P7 ये आपके हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग क्यू बन जाएगी। इसी तरह से प्रिंटर के लिए एक क्यू बन सकती है, इसको इन सबको हम बोलते हैं डिवाइस क्यू, राइट। देन जॉब क्यू, जितने भी प्रोसेस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ गया उन सब की एक क्यू होती है जिसको हम बोलते हैं जॉब क्यू, राइट। तो देयर आर वेरियस क्यूज और हर क्यू का अपना एक पर्पस है और प्रोसेस इन क्यूज के बीच में माइग्रेट करता रहता है। रेडी क्यू से डिवाइस क्यू में चला जाएगा, पहले हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क का काम पूरा करके फिर आपका रेडी क्यू में चला जाएगा, फिर आपकी जॉब क्यू में चला जाएगा, तो क्यूज के बीच में वो माइग्रेट करता रहता है। ये कुछ एग्जांपल दिखाए हैं, ये रेडी क्यू है, इसमें हेड टेल आ गया, ये इनके पीसीबीज हैं, पीसीबी 7 और पीसीबी 2, यानी कि दो प्रोसेस अभी हमारे रेडी क्यू में हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में भी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, मैग्नेटिक टेप 1 में कोई नहीं है। डिस्क के लिए पीसीबी 3, पीसीबी 14 और पीसीबी 6 ये तीन प्रोसेस हैं, P3, P14 एंड P6 व्हिच आर रिक्वेस्टिंग फॉर डिस्क। तो ये हम क्यू मेंटेन करते हैं और क्यू की हेल्प से हम इनको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में सर्व करते हैं। ये मेरा टर्मिनल क्यू है, तो इस तरह से हम वेरियस क्यूज मेंटेन करके चलते हैं। अब हम आते हैं शेड्यूलर की बात, जो हम शेड्यूलर की बात कर रहे थे उसका मैं बात कर लेता हूँ। तीन तरह के शेड्यूलर होते हैं बेसिकली, जैसा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी ये है कि किस किस प्रोसेस को सिस्टम में लेके आना है, किस किस प्रोसेस को सिस्टम में एग्जीक्यूट करने के लिए लेके आना है, रेडी क्यू के अंदर डालना है, ठीक है। मान लिया बहुत सारे प्रोसेसेस एक साथ आ गए तो वो भी डिजायरेबल नहीं है। मान लिया एक साथ 100 प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं सिस्टम में, सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है तो सिस्टम मेरा बोल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ये बनती है कि सिस्टम ओवरलोड ना हो। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी ये है कि ये देखता रहे कि कितने प्रोसेस सिस्टम एकोमोडेट कर सकता है, उतने प्रोसेस सिस्टम में लाए। बेसिकली अगर मैं कहूं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैनेज करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। This tells me how many processes are in the system at one point of time. Okay, तो ये मैनेज करने की जिम्मेदारी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है। मान लिया मेरे पास अभी 10 सिस्टम है, मेरी कैपेसिटी 20 की है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा भाई ठीक है और ले आओ प्रोसेस, P5 आना चाह रहा है आ जाने दो, P6 आना चाह रहा है आ जाने दो। लेकिन जब ये 18 या 19 हो जाएंगे उसके बाद ये कॉशियस हो जाएगा, हो सकता है मना कर दे कुछ प्रोसेसेस को। ओके, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की जिम्मेदारी ये होती है सिस्टम में प्रोसेस को लाना है या नहीं लाना है, और जैसे ही मैंने बताया था नया प्रोसेस आएगा वो रेडी क्यू में सीधे सीधे चला जाएगा। अब जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको हम बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर। ये सीपीयू है, ये मेरी रेडी क्यू है, P4, P6 और P7। यहां पे मान लिया मेरा P1 चल रहा है, राइट, और ये P1 किसी वजह से इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, इट वेंट फॉर इनपुट आउटपुट। नाउ अब सीपीयू को खाली नहीं छोड़ना, पर्पस ये था मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो हमारे पास ये तीन प्रोसेस है रेडी क्यू में, इनमें से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट करना है जिसको कि हम सीपीयू एलोकेट कर सकें। तो ये जिम्मेदारी आती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास।
यहाँ पे वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करेगा और उसकी हेल्प से मान लिया उसने कहा कि P6 को लोकेट करना है तो P6 विल बी ब्रॉट इन. दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर एक चीज पूछनी है. हाँ पूछिए. ये रेडी क्यू कहाँ पे होती है? रेडी क्यू मेमोरी में रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा ठीक है. अच्छा एक मीडियम टर्म शेड्यूलर भी होता है. एक्चुअल में क्या है कि कई बार लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ओवर कमिट कर देता है. ओवर कमिट्स. तो उस केस में बाद में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को लगता है नहीं भाई मैंने 25 प्रोसेस बुला लिए, ज्यादा बुला लिए, मैं तो 15 प्रोसेस या 20 प्रोसेस तक ही मैं सही से हैंडल कर सकता हूं. तो 5 प्रोसेस को स्वैप आउट करता है. स्वैप आउट. हार्ड डिस्क में चले जाएंगे ये प्रोसेस मेमोरी से. स्वैप आउट कर देता है एचडीडी में. बाद में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम जब लाइट लोडेड हो जाता है, कुछ प्रोसेस निकल गए, कुछ प्रोसेस ने अपना काम पूरा कर लिया, तो फिर इसको स्वैप इन करता है, हार्ड डिस्क से मेमोरी में ले आता है. तो किस प्रोसेस को स्वैप आउट करना है, किस प्रोसेस को स्वैप इन करना है, वो जिम्मेदारी होती है मीडियम टर्म शेड्यूलर की. राइट? हेलो तीनों तरह के शेड्यूलर क्लियर हो गए आपको? सर. हाँ यस सर. सर मैंने मतलब शायद पढ़ा था कि मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है वो वेटिंग क्यू के और रेडी क्यू के बीच में मतलब होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं. ओके सर. वेटिंग क्यू और रेडी क्यू. वेटिंग क्यू कौन सी वेटिंग क्यू? हर डिवाइस की अपनी अलग वेटिंग क्यू होती है. नहीं मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है हाँ और बीच में उसे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट चाहिए. हाँ वेटिंग स्टेट में चला गया. वेटिंग में जाने तो उसे वेटिंग स्टेट में भेजने का काम मीडियम टर्म शेड्यूलर का नहीं होता? नहीं नहीं मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम नहीं है. मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम सिर्फ ये है कि जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगता है कि जितने प्रोसेस में संभाल सकता था उससे ज्यादा प्रोसेस आ गए, तो कुछ प्रोसेस को सेलेक्ट करके वो हार्ड डिस्क में भेज देता है उनकी जिस पोजीशन में भी वो है. और बाद में जब उसको ये लगता है कि हाँ अब मैं हैंडल कर सकता हूँ, उन प्रोसेस को वापस लेकर आता है. इसको हम स्वैप आउट और स्वैप इन बोलते हैं. यही है, इसी को हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर. डायग्राम है इसका सर? किसका? तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का किसका डायग्राम पूछ रहे हो? इसका मीडियम टर्म शेड्यूलर का. शेड्यूलर का पूरे का. शेड्यूलर अलग अलग है ना, तीनों शेड्यूलर का अलग अलग काम है. अगर आप देखो भाई ये मेरा रैम है, ये मेरा सीपीयू है, ये मेरी हार्ड डिस्क है. ठीक है, अब आप समझो कैसे काम हो रहा है. यहाँ पे ये ओएस है, सब इन सब चीजों को इन सब चीजों को हैंडल करने की जिम्मेदारी इसकी है. तो सॉफ्टवेयर है, चल तो ये सीपीयू में रहा है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ये है कि किस प्रोसेस को मेमोरी में लेके आना है, किसको मेमोरी में लेके नहीं आना है. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि हार्ड डिस्क में ये प्रोसेस है, कोई एक्स प्रोसेस है, इसको मेमोरी में लेके आना है कि नहीं लेके आना है. ये डिसाइड करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. राइट? अब ये जब आ गया तो ये रेडी क्यू बनती है. सीपीयू के लिए एक रेडी क्यू होती है. ये एक्स प्रोसेस मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ और भी थे, वाई भी जेड भी. अब जब ये सीपीयू फ्री हुई तो मुझे कोई सीपीयू को प्रोसेस देना है, तो ये तीन प्रोसेस मेरे अभी कंटेंडर